guys, and welcome to the Talking Titans podcast, where we talk about anything and everything. इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डीसी फैंडम इवेंट के बारे में, जो कि 22 अगस्त को हुआ था. इस इवेंट में बहुत सारे जूसी न्यूज मिले. सो we will be discussing about all the topics, including the Batman, Snyder Cut, Suicide Squad, DC Games वगैरह वगैरह. ये इवेंट 24 आवर्स का था. सो ये पॉडकास्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है. तो हमने डिसाइड किया है कि इस पॉडकास्ट को हम पार्ट्स में रिलीज करेंगे. ऑल्सो हमें पता है कि आपने मार्वल का पॉडकास्ट नहीं सुना है, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो 1 hour लॉन्ग है. वी अंडरस्टैंड. एनीवेज, लेकिन हमारे साथ एक गेस्ट भी है. हिज नेम इज अभिमन्यु. हाय, सो आई एम अभिमन्यु, और अगर तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो प्लीज गो एंड चेक द मार्वल पॉडकास्ट. और ये अगर मार्वल पॉडकास्ट नहीं सुना तो क्या सुना, कम ऑन. एग्जैक्टली, मार्वल सुनो यार जाके. 1 घंटा फुल ऑन एंटरटेनमेंट है वो पॉडकास्ट. और मार्वल तो वैसे सब लोग देखते हैं, डीसी लेकिन सब लोग नहीं देखते. बस सीरियस एंड मैच्योर लोग ही डीसी देखते हैं. श्रीराज जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, उन लोगों को एक काइंड ऑफ इरेगुलरिटी महसूस हो रही होगी इस पॉडकास्ट में से, कि आज तक के सारे पॉडकास्ट में श्रीराज वाज देयर एंड दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें श्रीराज नहीं है. ओके, सो दैट्स दैट. लेट्स गेट टू द मेन कंटेंट ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द मोस्ट हाइप ट्रेलर ऑफ द डीसी फैंडम, व्हिच वाज द बैटमैन. सो क्या लगता है तुम लोगों को बैटमैन के बारे में? क्या थे एक्सपेक्टेशंस, और did the trailer live up to those expectations? Yeah, so Batman, the last event on the DC fandom. So Batman के जब मैंने पहले पिक्चर्स देखे थे from Matt Reeves, so उतना तब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, but I thought कि like when the trailer would be out, then probably I would be like more happy with it. बट वो नहीं हुआ, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ. When you start the topic of Batman, it's so triggering कि आप बोलते ही जाते हो. And अगर अभी ट्रेलर की बात करें, so Matt Reeves का ये थोड़ा different approach है. You can definitely say कि ये different approach है. But the visuals, when I talk about visuals, so that means the costume, the color background, yeah, the how much it is visually appealing. तो उतना up to the mark मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि firstly look at the suit. यार come on, this is not how a Batman noir suit is supposed to be. Like उसकी cowl आधी open है. Why is that? Like this is like not even कि ये क्या है. It is a question of ये क्यों है ऐसा. Secondly, he has a collar. Exactly, like why is that needed? Like क्या fashion sense है या what? So anyway, when moving on, so that was the costume के बारे में, like the Batman appearance. Then we get to the detailed part, which is Bruce Wayne. Now Robert Pattinson could have done a good job. Like when I saw the fan art and stuff, so it was like, yeah, fan art seems very intriguing. It seems very interesting, and he looks like a Bruce Wayne, like multi-millionaire or billionaire rather. So एक type से expectations बहुत high थे, but when I saw the trailer, he just like looked like a really above average income guy. Not gonna lie, here he looks like वो Batman morally depressed से ज़्यादा वो economically depressed लग रहा था. Corporate Batman. Exactly. Like this is Bruce Wayne you're talking about. He's supposed to be like, वो ऐसा दिखाता है कि he's like rolling in his Lamborghini, या he's like holding girls around his arms or stuff like that. Normal things that billionaires do. But instead, like ये सही में like economically depressed लग रहा है. Secondly, जो Batmobile है, God, it's just a normal charger car turned into, उसको पीछे मोटर लगा दिया, वो लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया पीछे. Batmobile, come on, the one thing Batman is known for, अगर कुछ सब खराब हो फिर भी Batmobile was good. Like कहाँ तो कितने सारे Batmobiles थे, कहाँ तो ये नॉर्मल कार. ऐसे तो मतलब
इसमें और फास्ट एंड फ्यूरियस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस को 5 और मूवीज दे दो बस, वो पहुंच जाएंगे इधर भी। दैट्स फिर ये हो गया बैटमोबिल के बारे में। एंड द ट्रेलर में जो लाइक sound of Riddler, it sounds like Bane from Dark Knight Rises. Not gonna lie, but he's literally sounding like Bane. And मतलब वो पूरा tone of the sentence या like जो एक mood है ना Riddler का, वो आ नहीं रहा है। Like if you go to Batman Forever and तब का Riddler देखो, या even in the game, I think Arkham Knight, so उसका रिडलर जो है, so वो रिडलर्स में एक थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी है। It has that kind of a loose attitude. Riddler is supposed to have a loose, more energized attitude. वो इस ट्रेलर में तो बिल्कुल दिखा नहीं। I'm not sure why. And talking about when he asks who the hell are you supposed to be, and he says I'm vengeance. That's exactly like how Christian Bale does it. Please, Christian Bale को कॉपी गलत जगह किया है। I mean, like कितना it is so triggering यार। It's like मेरा final thought उस पे ये निकला था कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन या मैट रीव्स न्यू बैटमैन मूवी makes me wanna say कि Ben Affleck was a better Batman. Thank you. Please, that's all I can say. अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस की बात करो तो मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट नहीं था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये बुरा होगा और वो बुरा था। सो मतलब लेट्स स्टार्ट विद द बैटमैन, राइट? मतलब उसकी कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। जब रॉबर्ट पैटिंसन को कास्ट किया तब से मुझे पता था कि ये बुरा होने वाला है। मतलब रॉबर्ट पैटिंसन के बाकी मूवीज के रोल देखे ना, वो कभी भी वैसी क्लासी लुक नहीं देता, लाइक बिलियनर लुक नहीं देता। वो हमेशा काइंड ऑफ एक डिप्रेस आउटलुक ही होता है उसका सभी चीजों पर। सो लाइक उधर से ही मेरे कास्टिंग से ही डाउनहिल जाने वाला था। और फिर उनका सूट रिवील किया गया था लीक फोटो से, वो तो पहले से ही बुरा लग रहा था। जैसे कि अभिमन्यु ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लाइक व्हाई डज ही हैव अ कॉलर, मतलब एक केप क्यों है ऐसा। और उसका मास्क तो बहुत ही काइंड ऑफ छोटा है, मतलब वो किस टाइप का मास्क है मुझे अभी समझ नहीं आया। मतलब मुझे लगता है कि अगर उन्होंने किसी कॉस्प्लेयर को हायर किया होता ना, वो ज्यादा अच्छा काम करता उस पे। If I may add to that, exactly, if I may add to that, जो ऐसे काउल्स है ना, जो उसका मास्क है, ऐसे मास्क लोग कॉमिक कॉन में पहनते थे। Yes. Handmade. Yeah, handmade. Yeah. And then next casting, they casted Zoe Kravitz as a Catwoman. Well, it didn't matter to me, but because I didn't exactly know who she was. But again, her costume looks very odd. Like it seems as if her mask is made out of a stone top hat or something like that. वो उसका भी कॉस्ट्यूम बहुत बुरा लग रहा है। अगर कॉस्ट्यूम वाइज देखे तो उन्होंने रिडलर का कॉस्ट्यूम काइंड ऑफ अच्छा बनाया है, कि वो जो टेप्स में जो उसे जो कॉस्ट्यूम है, मतलब वो रिडलर एक हर्ष नाम के एक पर्सन की आइडेंटिटी लेता है, वो काइंड ऑफ कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, इसलिए वो सिर्फ वही अच्छी बात है। और अगर बैटमोबिल की बात करें तो अभिमन्यु ने जितना स्टेट किया, लाइक उससे भी ज्यादा स्टेट हो नहीं सकता, क्योंकि कितने भी बैटमैन की बात करें, हर बैटमैन की एक आइकॉनिक बैटमोबिल है, पर इस पैटिंसन की बिल्कुल भी नहीं लगती आइकॉनिक। और मतलब अगर हम उस ट्रेलर में उन्होंने एक फाइट सीन दिखाया था, लाइक वो बैटमैन एक कुछ जोकर जैसे थीम लोगों को मारता है, मतलब वो जरा ज्यादा ही मारता है उधर। मतलब इतना क्यों मारा उन लोगों को? वो लिटरली उनका मर्डर कर रहा है ऐसा लग रहा था उधर। और फिर वो बोलता है आई एम वेंजेंस। तो मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, डीसी की एक एनिमेटेड फिल्म है बैटमैन एंड रॉबिन, उसमें बैटमैन खुद उसके बेटे को सिखाता है कि जस्टिस नॉट वेंजेंस, लाइक, और वो खुद यहाँ बोल रहा है कि आई एम वेंजेंस। दैट इज जस्ट सो कॉन्ट्राडिक्टिंग फॉर मी। सो द ट्विटर इज बीइंग वेरी हाइप्ड अबाउट दिस, पर मुझे नहीं लगता, मतलब एक बार मूवी आने दो,
सब लोग नीचे आ जाएंगे। True that. So I mean, if I may add कि ये movie ये Batman is the equivalent of Jared Leto as Joker. so Batman का मतलब I agree with राजवर्धन कि मतलब I knew रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन थोड़ा मतलब मैं होगा मैं पर अभी दिस वन अभी जो नया वाला ट्रेलर आया वो मुझे मतलब एकदम ऐसे उससे ओल्ड स्कूल वाइब्स आया थोड़ा, मतलब लाइक द ओल्ड एकदम कार्टून्स बैटमैन के थे, मतलब लाइक द व्हीकल ही वाज राइडिंग, हिज बैट केव, हिज स्टाइल, द डार्कनेस इन द ट्रेलर was actually much more than expected. And also one thing Abhimanyu you might have missed about his costume कि उन्होंने एक छोटा सा डिटेल ऐड किया था उसके कॉस्ट्यूम में, जब मतलब वो मास्क रिमूव करता है अपना, तो यू माइट हैव नोटिस्ड और नॉट कि उसके मतलब आईज के साइड में उसे ब्लैक पैचेस विजिबल है, तो वो डिटेलिंग तो वो डिटेलिंग मुझे मतलब कॉस्ट्यूम में ज्यादा अच्छा लगा देन द कॉस्ट्यूम, तो मतलब उससे भी मुझे थोड़ा मतलब ओल्ड स्कूल ऐसा वाइब्स आता एकदम 90s में, तो ओल्ड अगर गियर होता उसका तो मोस्टली ऐसा रहता। एंड आई एम एक्चुअली मोर एक्साइटेड अबाउट villains in this movie than the hero this time. I don't know about villains more. Right. नहीं वो एक्चुअली पहले मूवीज ने सारा बेंचमार्क सेट कर दिया ना विलन्स का, लाइक आइकॉनिक विलन्स, बेन, जोकर, पॉइजन आइवी, सो अभी people look more forward to the DC villains than the main character. अभी स्नाइडर कट के लिए भी लोग डार्क साइड एंड न्यू स्टेपनवुल्फ के लिए बहुत एक्साइटेड है रादर देन द एक्चुअल जस्टिस लीग, बट वो खैर वो बाद के एपिसोड की बात है वो, बट या सो एंड इफ आई मे मतलब मेरे को अभी फ्लैशबैक्स हो रहे हैं जिम गॉर्डन, so if I may if I may recall, Jim Gordon is not comic accurate, he's not even small like mildly accurate to the previous iterations of Jim Gordon, as well as I know yes Catwoman का जो mask है, it's just a monkey cap को एक बीच में से और एक होल निकाल दिया। मैं वही बोलने वाला था, वो मास्क ऐसा लग रहा है कि कोई होमलेस गाय के तरफ चुरा कर उसने लगाया हुआ है सर। Exactly. And even वो बैट लोगो जो है, it doesn't seem so appealing कि उसका कुछ बैट सिंबल बनेगा या बैट लाइट बनेगी, it's just a गन का something weird. I mean it's a very weird iteration, and the only way I would see this kind of a mood would work is if कि अगर वो पूरा सेट हुआ होता in the 1900s or something, exactly like Yash said कि old school vibes आ रही है इससे, so old school vibes आ रही है, so old school time में रख दो, क्योंकि it doesn't match up ना अभी के हमने जितने भी बैटमैन देखे हैं, and plus वो costume के बारे में, if you want to take inspiration from costumes, take it from Christian Bale, not Adam West जो पहला बैटमैन था। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब जैसे कि यश को मतलब ज्यादा पता नहीं है इस स्टोरी लाइन के बारे में, तो मतलब इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स तो बैटमैन, कैटवुमन एंड रिडलर एज हश है, सो लाइक वो बैटमैन हश की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं कॉमिक से, और अगर लिसनर्स उसे देखने में इंटरेस्टेड है तो डीसी एनिमेटेड की एक ऑलरेडी बैटमैन हश पे एक मूवी ऑलरेडी बनाई है उन्होंने, वो भी बहुत अच्छी है, तो वो भी देख सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो इन दोनों का ट्रैक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। ओके सो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द कास्ट, तुम लोगों ने पेंगुइन को कैसे मिस कर दिया? पेंगुइन का नाम किसी ने नहीं लिया। विलन्स के बारे में बात कर रहे थे, तुम लोगों ने हर्ष का नाम लिया, रिडलर का नाम लिया, कैटवुमन काइंड ऑफ नाम लिया, पेंगुइन तुम लोग मिस कर गए। बट ऐसा नहीं कि मुझे पहले फर्स्ट इसमें दिखा था पेंगुइन, लेकिन है इसमें। जब मैं ट्विटर पे एक्टिव था तब मुझे जाके समझा कि पेंगुइन भी है इसमें, एंड स्क्रीनशॉट देख के मुझे समझ में आया कि कौन से सेक्शन में पेंगुइन था। तो पेंगुइन को मिस मत करो। एंड लोग इस मूवी को काफी मतलब ऐसे हेट कर रहे, हेट नहीं बोलूंगा मैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे अच्छे से। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे उनके, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के गए थे। मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब
न्यूज आया कि रॉबर्ट पैटिंसन कास्ट होने वाला है, तो तुमको याद होगा मीम्स आए थे बहुत सारे। वो मीम्स में स्कूबी डू में के शैगी को बैटमैन का सूट पहना के खड़ा किया था एंड दे वर सेइंग दैट इट वाज रॉबर्ट पैटिंसन। सो वो सब मीम्स देख के मैं बहुत मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस मेरे ऐसे एकदम बहुत लो हो गए। सो उतने लो एक्सपेक्टेशंस रख के जब मैं गया, मैंने ट्रेलर देखा, सो काइंड ऑफ मुझे ठीक लगा, ऐसा उतना बुरा भी नहीं लगा, इतना ऐसा काफी अच्छा भी नहीं लगा, इट वाज ओके फॉर मी। और रॉबर्ट पैटिंसन मुझे ऐसा लगता है कि शायद, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली, बट शायद बैटमैन को जस्टिस दे सकते, जस्टिस मतलब ऐसा अच्छे से पोर्ट्रेट कर पाएगा मे बी, क्योंकि अभी सिर्फ 25% मूवी शूट हुई है और 25% मूवी के ऊपर इन लोगों ने इतना सही ट्रेलर दिखाया। तो मुझे लगता है कि जब पूरी शूट होगी तो काफी अच्छा हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, इट्स एन इंडी मूवी। इंडी मूवी मतलब तुम लोगों को जोकर याद होगा, अभी 2019 में जोकर आया था, उसमें देयर वर नो एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी एट ऑल, मतलब इट वाज टोटली लाइक रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड थी, उसमें फैंटास्टिकल एलिमेंट्स कुछ भी नहीं थे, फैंटेसी वाले एलिमेंट्स कुछ भी नहीं थे। सो दिस बैटमैन इज काइंड ऑफ लाइक दैट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी बफ्ड अप लाइक एकदम ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा हट्टा कट्टा है, नहीं, ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो, रिवेंज चाहता है उसका, सो वैसा इंसान है। एंड सेइंग बैटमोबाइल भी वैसा है। बैटमोबाइल इट्स नॉट इतना मतलब इट्स नॉट सो गुड, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटमोबाइल ऐसा हैवी मशीन होगी बैटमोबाइल, बट इसमें सादी कार है, क्योंकि इट्स अ रियल लाइफ डिपिक्शन, मतलब एकदम ऐसे काफी फैंटेसी एलिमेंट्स नहीं है इसमें कुछ भी। सो दैट्स व्हाई द बैटमोबाइल डजंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो ये बैटमैन काफी ज्यादा अच्छी है। द कॉस्ट्यूम मुझे भी पसंद नहीं आई, तुम लोगों ने इतना सारा बोला कॉस्ट्यूम के बारे में, मैं और कुछ ऐड नहीं करूंगा। एंड द बैट लोगो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बैट लोगो वाज रियली बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए बैट लोगो। मुझे क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन का बैट लोगो सबसे अच्छा लगा। इवन बेन एफ्लेक का मुझे लोगो पसंद आया, वो काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ह्यूज था, उसके विंग्स बहुत ज्यादा बड़े थे, अजीब लगता था वो। और इस वाले को तो काफी स्लीक बना लिया इन लोगों ने, ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। सो इतने ही थे मेरे पॉइंट्स। You are saying real life depiction, just 2 words man, Nolan trilogy. I mean उससे ज्यादा रियल और उससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ हो नहीं सकता। I don't think there can be more, मतलब ये तो like I am getting what you're trying to say कि ये सबसे रियल में कैसे हुआ होगा या प्रैक्टिकल डिपिक्शन कैसा है उसका, ये the movie would focus on that indie movie exactly, like but Nolan ने भी यही अप्रोच लिया था and look what he created. I mean from the first bat suit to the villains to like even Bane को they didn't give Bane that venom or anything, TN1 नहीं दिया था Bane को, simple एक nose damage था इसलिए उसको एक mask था which helped him breathe, but उसकी सारी body shape natural था उसका, like everything was so real. I mean hardly if you just exclude the bat pod the bat, I mean the flying thing, then उसके अलावा हर चीज was very down to earth accurate इतने level पे, and look what he created. And meanwhile if you compare it to the Matt Reeves version, if you're saying कि it is a real life or practical version of Batman, then I would say कि this is exactly what I just said, कि economically depressed, कि आपके पास resources नहीं है, उसमें आप कैसे बैटमैन बनते हो, probably this movie would focus on that. But Bruce Wayne is a billionaire, that doesn't make sense. Yeah, but still 25% movie shoot हुई है, next 75% में क्या हो सकता है, no one can Better say. change many things. ये इनमें एक ऐड करना चाहूंगा, मतलब तुमने कहा ना कि मतलब ये फैंटेसी नहीं है इसमें, so like मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि one of the villains is Penguin, who is associated with Penguin that time. So exactly, इसीलिए Penguin का फोटो fantasy, how far do they stretch it? Okay, so मैं काउंटर पॉइंट ये दूंगा कि Penguin तुम लोग नोटिस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतना रियल लाइफ लग रहा है कि he is like a human being. तुम लोग देखो जाकर वहाँ पे, वो नोटिस ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा he looks really like a human. ऐसा his name would be Penguin, but मुझे पता नहीं कि वो लोग आगे कैसे डिपिक्ट करेंगे उसको, but it just didn't look like something out of this world. Okay, so
That's what I'm saying. Danny DeVito used penguins as weapons against Batman, so कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मैट रिव्स क्या कर सकते हैं, मतलब उसे वैसे भी मंकीज के साथ ऑब्सेशन है ही, सो Exactly. पेंगुइन्स का पता नहीं। Okay, so और कुछ पॉइंट्स रह गए क्या? मैं वो भी सोच रहा हूँ, मुझे मतलब तुम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सोच रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स है क्या बात करने के लिए? I would say the bat pod या जो बाइक है उसकी, I think जो set images, leaked images में से था, I think even that looks like a very, you know, रेगुलर regular bike. I mean, हमारे इधर वैसे पल्सर्स मिलती है dude. हमारे इधर कॉलेज के आधे लोग उस टाइप की बाइक लेके आते होंगे। Yeah, I mean, like क्या मतलब, like if you show like a Harley on Walter- crack. Yeah, this would like, which makes me wonder कि if this movie is a version where you show a parallel universe where Batman या Bruce Wayne के पास ज्यादा पैसा है ही नहीं, then this could actually work. I mean, a poor man's Nolan trilogy हो सकती है ये. And even I think उसमें Alfred नहीं दिखाया. ये एल्फ्रेड को नहीं, Exactly, हाँ, मैं नहीं वही दिखाया। बोलने वाला था कि एल्फ्रेड दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एल्फ्रेड की भी बहुत बड़ी मिसकास्टिंग कर दी है। Yeah, and even the अच्छा, cast Batcave, हुआ है I mean, Batcave उसकी just एक sewer में 2 tables है और एक gaming setup हाँ। है, I think this is what it feels like. ओके, अभी तुम ऐसा कह रहे हो इसलिए मुझे काफी रिलेट कर पा रहा हूँ कि दिस रियली लुक्स लाइक एन इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड बैटमैन, क्योंकि एल्फ्रेड को अफोर्ड नहीं कर पाया, उसका बैट केव अफोर्ड नहीं कर पाया वो, तो ऐसा लग रहा है कि बैटमैन सही में गरीब हो Yeah, गया। but point to be noted here कि ये सब ट्रेलर और अभी तक के इमेजेस के थ्रू लग रहा है, and if when the movie comes out and if it is actually very good and it actually matches up to the storyline, तब I think सबके views change होंगे and like people would be very surprised and happy about this Batman. Maybe small chance अभी भी Yeah. I really hope that happens. अगर वो बैटमैन मैं- अच्छा हो तो हम ये पॉडकास्ट वापस करेंगे और मैं सॉरी बोलूंगा सबको। Exactly. And I would say कि Ben Affleck is the worst Batman after that. Ben Affleck is the most comic accurate Batman there is. ये मानना पड़ेगा क्योंकि कॉमिक के हिसाब से बैटमैन काफी ऐसा Okay, he might be a comic Ben accurate. Affleck काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे Yeah, but he might be a comic accurate Batman, but he is not a comic accurate Bruce Wayne. Getting it? Yes. The difference. Bruce Wayne के अंदर to the bones उसके एक अंदर एक seriousness है, या उसके अंदर एक determination है. Like he is not ready to give up his moral compass. That is what Bruce Wayne stands for. उसके पास इतना पैसा है, he uses it for different technology, and वो show off तभी करता है when he's like being Bruce Wayne, not when he's being Batman. That's what I think. And even Ben Affleck के character, he drinks, and you know he uses a lot of guns. He carries a lot of guns. So I think it really contradicts the entire point of Batman. Like guns use करना. If you look at the animated movie Bad Blood, Batman actually trembles. उसके हाथ कांप जाते when he holds a gun. So that's I think what That's because मतलब वो उसके सन रॉबिन के ऊपर वो गन रखा रहा था, like do you understand? That general. I think ये fact है कि comics में Batman ने कभी guns ऐसे चलाई नहीं है, real gun चलाई नहीं है. It can also be trauma, like मतलब उसके parents को मतलब गन से मारा है, मुझे पहले लगा था ऐसा कुछ, तो गन पॉइंट पे मारा था। That's what it is. I mean, मतलब मुझे आर्ग्यू करना बहुत पसंद आता, पर तुमने बहुत बार मुझे ऑलमोस्ट मतलब मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर चुके हो, और एट द मोमेंट मुझे काउंटर करने के लिए मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं है, सो मैं साइलेंट हो जाने वाला हूँ। yeah, I mean your choices. I mean your points are good. I mean I can agree कि he's a very comic accurate Batman, but I would say कि वो Bruce Wayne में fail है वो, like alter ego का fail है. So that's what I would say. Affleck के character के बारे में. So that was all about Batman. Well, those were the views of our guest. I hope आपको ये episode पसंद आया.
Stay tuned for the next episode where we talk about the Snyder Cut, DC games, Wonder Woman 84, The Suicide Squad और बहुत कुछ. And guys, don't forget to like, share and subscribe. Feel free to comment and हमें अपने views बताएं. Also, the other videos like the expectations to Snyder Cut and other stuff. So, that's all we have for today. See you guys next time.